हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। द टॉपिक ऑफ टुडे इज मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 3। हमने लास्ट 2 एपिसोड्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में वी डिस्कस्ड 5 मिथ्स। हमने 5 मिथ्याओं की चर्चा की थी। पहली थी वेदर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक इज रिस्की एंड वी फाउंड नो, इट इज अ रिवॉर्डेबल इन्वेस्टमेंट। Then we discussed I don't have enough funds, and we saw with ample examples that even small funds, if invested over a long term in a good company, gives handsome returns. Then we discussed I'm not a finance expert, and we saw examples where we established that it is not necessary to be a finance expert. Then some of the guys shy away from the market thinking that investment in stocks is gambling. ये एक जुआ है. And we concluded that investment is not a gambling, it is a combination of art and science. And we also discussed as a last myth last time that buying at all times low is the best strategy. And we found that we get trapped if we try to catch a stock or to purchase a stock, to enter into a stock which is falling continuously. And today, in this part 3 of this series on myths of the stock market, we'll be discussing the next 2 myths, which are low price shares will give better returns, and the second is stocks at 52-week high are risky and should be avoided. So let us discuss the 6th myth. और आइए हम चर्चा करते हैं एक मिथ की कि लो प्राइस शेयर्स विल ऑलवेज गिव बेटर रिटर्न्स। मतलब अगर हम लो प्राइस शेयर खरीदते हैं तो हमको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के देखते हैं और कंक्लूड करते हैं। लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस सुजलॉन, we'll be discussing again today. We are considering the journey from 21st January 8 till 6th November 2020. हम ये जर्नी 21 जनवरी 8 से लेकर 6 नवंबर 2020 तक एक स्पेसिफिक पर्पस से देखते हैं, क्योंकि 21 जनवरी 8 से ये 10 रुपए वाला स्टॉक स्प्लिट होके 2 रुपए का हो गया। स्प्लिट से जस्ट पहले 2000 रुपए का स्टॉक होता था, ये 10 रुपए का। The stock was priced at 400 rupees. On 21st January 2008, it got split and the closing price should have been around 400. It fell down to 366. और hardly एक साल में the stock slid down. On 1st January 2009, it was only 66 rupees. A low price share by all means. Now, if we would have invested in this company thinking to be at a low price share, it went up. Yes, for a certain period of time it went up. और अगर हम बाहर नहीं निकले, हम फंस गए होते, we could have been trapped, and the stock today, that is the last trading price on 6th November 2020 was only 3 rupees. A stock which after a split got listed at 400 rupees in a matter of 12 years has slid down to 3 rupees. 66 इसका 2009 में प्राइस था। अगर हम उस समय भी एंटर किए होते तो we would have incurred huge losses. Now let us look at another company, Vodafone Idea. Last time also we discussed, took example of this company. An established company with good management, we are taking 5 years journey. 1 जनवरी 2015 172 रुपए शेयर की प्राइस, नॉट वेरी कॉस्टली, कंटिन्यूअसली ऑन ए स्लाइडिंग पाथ। और अब इसकी प्राइस है लोएस्ट 3 रुपए टच करने के बाद 6 नवंबर को 9 रुपए। इट इज बीइंग ट्रेडेड एट 9 रुपीज विच वॉज 5 years ago being traded at 172 rupees. So if the story is not good, the valuations are not good, the price is not going to help us. Now let us look at reverse examples. हम कुछ high price shares की examples लेते हैं. Let us look at MRF.
₹10 वाला शेयर लगभग 40,000 रुपए, टू बी वेरी स्पेसिफिक 39,681 ऑन 1 सितंबर 2015। अगर आपने उस समय भी इन्वेस्ट किया होता, then you would have been sitting with handsome gains of roughly 1.72 times। आज शेयर की प्राइस है, थोड़ा बहुत नीचे कम भी आया है, तो 68,514, 68,514, a CAGR of 11.5%, above 11.5% in last 5 years, better than any bank returns. So even a high price share with good valuations will give us good returns. So the price should not be criteria. The criteria should be valuations of a company. Now let us look at another example. I am sorry. Asian Paints. Last time also we discussed about this company. And all of us at some stage would have used this. कभी ना कभी Asian Paints का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अगर ये हमारे पोर्टफोलियो पे हमने कभी भी एंटर किया होता, तो ऑलवेज इट हैज बीन गोइंग अप कंटिन्यूअसली। यहां भी 5 साल की जर्नी अगर देख लें, 1 सितंबर 2015, आज से ठीक 5 साल पहले इसकी प्राइस थी 816 रुपए, 816 रुपीज, एंड टुडे दैट इज ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे 6 नवंबर इट वाज 2208 रुपीज, a return of 2.7 times in just 5 years and CAGR of 22%. So if the company again is good, we'll get good returns. Now let us look at the other myth, that stocks at 52-week high are risky and should be avoided. अगर कोई स्टॉक अपने हाईएस्ट पे चल रहा है तो हम डरते हैं उससे, वी शाई अवे। लेट अस लुक एट अगेन सम एग्जांपल्स। ये एक आरती ड्रग्स का एग्जांपल है, जो स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत भी परिचित है। उन्होंने इस स्टॉक अभी न्यूज में था सितंबर एंड में, क्यों? क्योंकि इसने माइंड बॉगलिंग बोनस दिया था, 3:1, यानी कि 1 शेयर पे 3 शेयर फ्री दिए थे। ये शेयर अराउंड 500 रुपीज ही चला करता था सालों से। अगर इसकी सिर्फ 1 जनवरी 20 से जर्नी देख लें, सिर्फ 1 जनवरी, हार्डली 10 महीने की जर्नी। तो ये मार्च में, जब 23 मार्च को मार्केट करेक्ट हुआ था, तब भी ये हार्डली 426 रुपए के आसपास आया था। दैट इज ऑल्सो इंट्राडे, एंड इट वेंट अप अगेन, एंड सिंस देन इट हैज कंटिन्यूअसली गॉन अप। मैंने 29 सितंबर तक का डेटा इसलिए लिया है क्योंकि उस दिन वो एक्स बोनस हो गया था। तो 29 सितंबर तक 2,939 रुपीज, 2,939 रुपए, मोर देन 5.5 टाइम्स रिटर्न्स इन ए जस्ट स्पैन ऑफ 10 मंथ्स। 590 रुपए वाला शेयर बढ़कर 2,939 रुपए पर पहुंच गया। ये इसलिए कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे थे, जिसने रियलाइज किया, इन्वेस्टेड रहा थ्रू आउट, पेशेंटली इन्वेस्टेड रहा, एंड इन 10 months he has got very handsome returns. Let us look at another examples. Same company, Asian Paints, सेम ग्राफ, कभी भी आप एंटर कर लें। ऑलवेज हमें लगेगा ये हाई पे है, हम कैसे एंटर करें, बट इट हैज ऑलवेज गॉन अप 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 कंटिन्यूअसली बिकॉज द वैल्यूएशंस आर गुड। आप जब भी एंटर करते हैं, आप देखते हैं कि उसके आगे शेयर ऊपर ही ऊपर गया है। सो इफ द स्टोरी इज गुड, the company is definitely going to reward you. We should only look at the valuations of the company, not at the price. Now let us look another example, BSE Sensex. इसकी जर्नी अगर हम देखते हैं BSE Sensex की, 1 जनवरी 90 से लेकर
अभी तक 6 नवंबर 2020 तक 783 से लेकर, हमने हमेशा हर वीडियो में इसको डिस्कस किया है, ये इंडेक्स 6 नवंबर को 41,893, लगभग हाईएस्ट जो कि 15-16 जनवरी के आसपास था, 42,000 समथिंग, उसके आसपास इंडेक्स पहुंच चुका है। करेक्ट होने के बाद जो 26,000 इंडेक्स आ गया था मार्च में, 23 मार्च के आसपास, हमने किसी भी स्टेज पे सेंसेक्स के स्टॉक्स में एंटर किया होता इन द प्रपोर्शन ऑफ द सेंसेक्स, सो वी वुड हैव बीन इन लास्ट 30 years got a return of average 14% CAGR, and how many times? 53.5 times returns. Yes friends, since the valuations of most of the stocks in BSE Sensex are good, they deliver handsome returns over the year, so the Sensex also delivers a good returns. Now let us look at an example of स्मार्ट बिलियनर पिक्स। हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम भी, हमारा एक पोर्टफोलियो है, एक न्यूज़लेटर है स्मार्ट गेन्स, जिसमें स्मार्ट बिलियनर पिक्स, स्मार्ट वीआरसी एवरी वेडनेसडे रिकमेंड करता है। ये सिलसिला शुरू हुआ था 30 मई 2001 पे, और इन्वेस्टमेंट कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ था? मात्र 1 लाख रुपए से, और 6 नवंबर 2020 को वो 1 लाख रुपए की वैल्यू, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, रिलीजियसली सजेशंस को फॉलो किया होता, तो आज उस पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 78.46 lakhs, CAGR ऑफ 25.8%, 78 times in a span of 20 years, रिटर्न ऑफ 78 टाइम्स। आप किसी भी, तो अगर आपकी पिक अच्छी है, कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, या आपका एडवाइजर अच्छा है जो आपको मदद करता है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो डेफिनेटली द प्राइस डजंट मैटर, द हाईएस्ट पीक डजंट मैटर, what matters is the valuations. So what we learned from the analysis is that low priced shares with high valuations is a trap, whereas high priced shares with reasonable valuations will give us good returns. High priced share भी है, valuations उसके reasonable हैं, तो हमारे returns अच्छे होंगे। और अगर low price share है, ऑलरेडी हाईली वैल्यूड है, वैल्यूएशंस उसके हाई हैं, तो हमको रिटर्न्स नहीं, हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे। सिमिलरली हमने देखा कि हम प्राइस की चिंता ना करें कि ये ऑल टाइम हाईज पे है या 52 वीक हाई पे है, हम तो ये देखें क्या ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूड है। अगर ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूड है, हमारा विश्वास है कंपनी में, हमारा विश्वास है स्टॉक में, तो गो एंड इन्वेस्ट। एवरी टाइम इज राइट फॉर इन्वेस्टमेंट। आज कई इन्वेस्टर्स ये सोच रहे होंगे कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे है, इज इट राइट टाइम? आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 15-16 जनवरी को जब मार्केट हाई पे पहुंचा था, किसी को नहीं मालूम था कोरोना आ जाएगा। 23 मार्च को मार्केट रिएक्ट किया। जिस दिन मार्केट रिएक्ट किया, किसी ने नहीं सोचा था कि 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, या अगर 23 मार्च से लेकर अक्टूबर एंड तक देख लें तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स में स्टॉक सेंसेक्स वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। नोबडी एवर थॉट। सो प्रिडिक्टिंग द सेंसेक्स और द मार्केट is very, very difficult. You should have, an investor should have a confidence in his stock, in his pick, or in his advisors. Now let us learn from what experts have to say. We always conclude our video with the learning from the experts. Bottoms in the investment world don't end with 4 years lows. They end with 10 to 15 year lows. So please
Last time also we discussed, don't try to catch a falling knife. गिरते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश न करें. मार्केट वो जानता है जो हम और आप नहीं जानते. This is what Jim Rogers said. And the famous investment advisor पीटर लिंच ने एक कंपनी पकड़ी थी, सुबारू. वो कहता कि अगर हमने सुबारू को, जो कि जब उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, इट वॉज ऑलरेडी 20 टाइम्स अप, लेकिन पीटर लिंच जी कहते हैं कि ही डिडंट शाय अवे. ही स्टडीड द फंडामेंटल्स, फाउंड दैट द ग्रोथ इज इंटैक्ट, देयर इज अ स्कोप, further scope in the growth, and Peter Lynch picked up the shares, and from there it further went up 7 times. एक स्टॉक जो कि 20 गुना बढ़ चुका था अपने लोएस्ट से, उसमें फंडामेंटली इन्वेस्ट किया पीटर लिंच साहब ने. अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, और वहां से उनको 7 टाइम्स रिटर्न्स मिले उसी स्टॉक से. तो फ्रेंड्स, जो भी मिथ्याएं हैं मार्केट में, उनसे हमको घबराना नहीं है. वी हैव डिस्कस 7 myths so far. There could be many more. You can write to us. We'll try and discuss them and try to remove your fears. I again conclude this video with an appeal to the new beginners in the market, या जो यंग जनरेशन है, जो कि वीडियोस को पहली बार देख रही है या पहली बार मार्केट में एंटर करना चाहती है. तो प्लीज बी कंफर्टेबल एंड ऑलवेज यू शुड इन्वेस्ट, मेक ए हैबिट ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स. एट सम स्टेज वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कितना हमको स्टॉक्स में डालना चाहिए. और हम अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फंडामेंटल्स पे डिस्कस करेंगे. कुछ जो एसेंशियल्स बातें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उन पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग, फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस विच वी हैव बीन रिसीविंग. वी लुक फॉरवर्ड टू फर्दर वैल्यूएबल सजेशंस, और हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके सजेशंस की. थैंक यू वेरी मच.